राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू हो रहा है डिजीज ऑफ यूरेथ्रा से। तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कंस्ट्रक्शन करता है यूरेथ्रा को कॉज करता है कंजेनाइटल वेरी रेयर है। ट्रांसट्रोमैटिक पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, कैथराइजेशन, डायलिटेशन और ट्रांस यूरेथ्रल प्रोसीजर है। पोस्ट ऑपरेटिव में प्रोटेक्टोमी है, एम्पुटेशन ऑफ पेनिस है, रिपेयर करता है रप्चर यूरेथ्रा को। इन्फ्लेमेटरी कॉज है पोस्ट यूरेथ्रल चेंज ऑफ स्फेराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्केमेटोसिस। क्लिनिकल फीचर है previous history of some above causes common in young age 20 to 40 years, dysuria, febrile marrow and distracted stream, trembling the brain. Urine stem improves on straining passage of planks in the urine and urethral discharge mostly in the morning. Structure may be felt in the perineum and bottom hole. नेक्स्ट है आपका ड्राउक्सीनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, रिजल्ट इन इंक्रीज इन एबिलिटी ऑफ द मैच्योरेशन एंड एक्यूट और क्रॉनिक रिटेंशन इज सीन। इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो यूरेथ्रोस्कोपी है, विल शो द साइट एंड द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। स्फिंक्टर यूरेथ्रोस्कोपी जो है वो यूरेथ्रोग्राफी है, वेल शो लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, पास एबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, फॉल्स पैसेज, डायलिटेशन अबव द स्ट्रक्चर। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रीटमेंट जो है वो है intermediate dilatation before each dilute. The patient should pass urine before and clean the part. Then urethra is filled with the local anesthesia or antiseptic agents. Dilatation must be carried out gently by the bodies of increased size, dilated at the first twice a week, then once a week for a month, then once a month for a year, at every year on his birthday. Example: gum elastic bodies, Leicester metal bodies. Continuous dilatation indication when the intermediate dilatation are now very successful. Initially dilatation is done by gum elastic bodies and then corresponding size catheter is kept in the urethra for 2 or 3 days. Next है conservative treatment, external urethrectomy also called as wheelhouse operation. Indications है acute retention with an impossible structure. Method है आपका urethra is an incised on its under surface proximal 9% beyond the structure. Next one internal urectomy. Indication is passable structure. Passable is divided by the Thomson's-Walker urethrotomy and followed by the intermediate dilatation. Catheter is left for 3 days and urethrostomy should be repeated in 3 months. Urethroplasty, it is the treatment of choice called as the Johnson's urethroplasty method. First laying open the urethral wall proximal to the structure. Complication of the urethral structure: retention of the urethral diverticulum, urethral abscess and urethral fistula. Next है rupture of the urethra. 2 types है: rupture of the bulbous urethra, rupture of the membranous urethra. Each of these types is further subdivided into as complete to incomplete. Rupture of bulbous urethra cause है fall aside, a projecting object, cycling accident. CF history of trauma, history of not passing urine from the injury, urethral hemorrhage. Trade sign है perineal hematoma, urethral hemorrhage, retention of urine, extravasation of the urine into the scrotum. Treatment है patient is instructed is not to try to pass urine. Catheterization in case of incomplete rupture to the urethra is passed and left in a position 48 hours. A perical hematoma must be drained and the midline wound packed and urinary antiseptic given. In case of complete rupture of urethra, the catheter cannot be passed. Patient lie in lithotomy position for exposure of site of rupture. A midline perineal excision is given and the pubic cystomy is performed to the bladder and drained by the suprapubic catheter by interrupting catgut stitches and wound packed. The catheter remains indwelled for 8 to 10 days. Post-operative treatment: urinary antiseptic given, uroclocosum 100 mg kg 6 gram urine returned after a week. Uretherogram performed 2 months later and complication: subcutaneous extravasation of the urine structure due to the infection.
नेक्स्ट है रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा कॉजेज है फ्रैक्चर पेल्विस ऑन डिसलोकेशन ऑफ द एम्फाइसीमिया द pubic penetration injury the CF history of the trauma history of non-passing urine hemorrhage sign shock evidence of pelvic fracture suprapubic dissension due to the distended bladder in the rupture of the membrane urethra the extravasation of the urine and extraperitoneal rupture of the bladder in PR examination fluent swelling prostate not palpable treatment of blood transfusion IV fluid for the shock operation and suprapubic cystectomy alone is done in case of incomplete rupture. Incomplete rupture, the follower is urethra is passed by the railroad method and given some traction on the suprapubic cystectomy is also done along with the drainage of the retropubic space. Postoperative Polis catheter removed after the 12th day and the suprapubic cystectomy removed on the 28th day. Postoperative repeated dilatation may be required. Next one है आपका urethritis. It is of two types, gongulator urethritis and non-gongulator urethritis. अगर मैं कॉज की बात करूं तो इसमें टू टाइप्स का होता है यूरेथ्राइटिस गोनेकोकल और यूरेथ्राइटिस और नॉन गोनेकोकल यूरेथ्राइटिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉज की तो नेसेरिया गोनेरिया हुआ, इसका कॉज का 1%। गोनेकोकल यूरेथ्राइटिस कॉजेटिव एजेंट वही नेसेरिया गोनेरिया है, इज अ कॉज ऑफ गोनेरिया विच अफेक्ट द प्राइमरी द एंटीरियर यूरेथ्रा इन द मेल्स एंड द यूरेथ्रा इन द सर्फिक्स ऑफ द फीमेल। अगर मैं फीमेल क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं तो 3 to 5 days के लिए आफ्टर इंटरकोर्स विद इन इन्फेक्टेड partner there is occur some discomfort of maturation after the pregnancy to a scalding pain, urethral discharge, first steropurulent, then becoming the purulent and yellowish. In chronic cases a slight purulent morning discharge or some slight staining of the underclothes. Investigation की अगर मैं बात करूँ तो gram stain, urethral smear well show membranosa pus cells and both intra and extracellular gram negative diplocoma. ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ 2 glass यूरिन टेस्ट की बात करूँ तो यूरिन शो इन द फर्स्ट ग्लास हैजी बट इन क्लीन इन सेकेंड ग्लास। नेक्स्ट की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस है लोकल और सिस्टमैटिक। लोकल की मैं बात करूँ तो यूरेथ्राइटिस है, प्रोस्टाइटिस है, एडेनोमायोसाइटिस है, पेरिनियल एब्सेसिस है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। सिस्टमैटिक की अगर मैं बात करूँ तो गोनेकोकल आर्थराइटिस है, इरिडोसाइटोसिस, पेटिसीमिया है, एंडोकार्डियाटाइटिस है। ट्रीटमेंट की बात करूँ एम्पिसिलिन है 3 ग्राम दोगे स्टार्ट विद प्रोबोनेसाइड 2 ग्राम टू द एक्सक्रीशन, प्रोकेन पेनिसिलिन 1.2 to 2.4 mega unit IM केफ्ट्रिन फॉर 2 days, कैनामाइसिन 2 ग्राम स्टेट। नॉन गोनेकोकल आर्थराइटिस नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस कॉज है बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस एक्सेट्रा। इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो 2 ग्लास यूरिन टेस्ट करोगे। कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक प्रोस्टाइटिस रिटस सिंड्रोम है। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ टेट्रासाइक्लिन 250 mg GED 10 days के लिए होती है, लाइडरमाइसिन 1 BD फॉर 2 to 4 days, मेट्रोनिडाजोल 400 mg BD पर 5 days दोगे। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका डिजीज़ ऑफ पेनिस, इसी में कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनेगी और मुझे लगता है कि शायद 2 वीडियो और आएंगी इसकी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। पर अभी थोड़ा सा जो ये दूसरे नोट्स हैं और नोट्स हैं वो भी मैं शल्य के करा दूँगी। ठीक है, अभी हम शल्य ही करेंगे। ठीक है, लगभग कल मतलब कि ऐसा समझो कि अभी 20-30 वीडियो शल्य की ही आएंगी। ठीक है, तो डिजीज़ ऑफ पेनिस फाइमोसिस के लिए इनएबिलिटी करती है, रिट्रैक्ट करती है, पेरिन्यूअल स्किन ओवर द ग्लैंड्स इज कॉल्ड फाइमोसिस। ठीक है, कॉज है कॉन्जेनाइटल, सेकेंडरी कॉज है। ठीक है, क्रॉनिक बेल्वेनोफाइटिस है, इंजेक्शंस ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस है, परपेरस स्किन है। नेक्स्ट की बात करूँ इट इज़ कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट ऑफ कैनरा फर्स्ट डिग्री लेशन और सोर ऑफ साई पैलेस। ठीक है, CA पेनिस का है वेरी लॉन्ग प्रेपस रेयरली होता है। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल फीचर्स। अगर इनएबिलिटी की बात करूँ तो रिट्रैक्ट करना, परप्यूरिक को पिन होल मैटस है, इन चिल्ड्रन के बेलोइंग है, परप्यूर कैन बी सीन विद द डायग्नोसिस फाइमोसिस। कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ तो CA पेनिस है, प्यूरा फाइमोसिस है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो
ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सर्कमस्टेंसेस है अराउंड द ग्लैंड्स। परप्यूर प्रोसीजर की बात करूँ तो परप्यूज ये रिट्रैक्ट करता है बाय द थर्ड आर्टरी फोर्सेप्स को और वन इन द मिडिल लाइन। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो वेंट्रली जो है वो 2 सेंटीमीटर आइदर साइड होता है ऑफ मिडिल लाइन। डॉर्सली परप्यूर जो होती है स्लेट अप इन द मिडिल वेन डॉर्सली टू विद इन द 1.5 सेंटीमीटर ऑफ कोरोना। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो है हमारा जो लेयर होती है फ्लैप करती है एक्साइज को और सुपरफिशियली जो है वो रिट्रैक्ट करती है ब्लैडर को। आर सिक्योर टू द लाइगेटर और इनर लाइन ट्रांसमिट करती है 3 mm फ्रॉम द कोरोना। द टू कट एजेस आर अप्रॉक्स विद द फाइन इंटरप्टेड कैटगट सचर नियर द फेरोनम। द मैट्रेस सचर इज ऑल्सो डू ड्रेसिंग। एंटीबायोटिक्स आर गिवन फॉर 5 to 7 days है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू प्लेस बैक ऑफ द रिट्रैक्टिव परप्यूबल स्किन ओवर द ग्लैंड्स इज नोन एज पैरा। नेक्स्ट जो है वो है आपका शिशिन अबुर्द। शिशिन अबुर्द की बात करूँ तो शिशिन पर प्राहा मणि के बाद के पीछे की ओर उंगली और अबुर्द पाइलोमा उत्पन्न होता है। इसमें दुर्गंधित स्राव निकलता है। संभोग से ये रोग स्त्रियों में ही होता है। कभी कभी ये रोग घातक अबुर्द में परिवर्तित हो जाता है। चिकित्सा की बात करूं तो अबुर्द के उत्पन्न होने के लिए ही अग्निकर्म द्वारा इसका स्थानिक छेदन कर देना चाहिए। सीए पेनिस है इसके निश्चित कारणों का अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया है क्योंकि फिर भी शिशिन पर श्वेत शालकता जीर्ण होने से या शिशिन पर अजीर्ण कंडू रहने से कैंसर हो सकता है एवं शैशव काल में रक्तता फट देने से यह अबुर्द नहीं होता है। राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज़ ऑफ पेनिस। डिजीज़ ऑफ पेनिस, ठीक है। तो इसमें पहला है फिमोसिस जिसमें कि निरुद्ध प्रकाश सुश्रुत ने दिया है, निरुद्ध मणि भागवत ने दिया है। डेफिनेशन है इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द पेरिनेल स्किन ओवर द ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज फाइमोसिस। अगर कॉज की बात करूं तो उसका कॉन्जेनाइटल सेकेंडरी कॉज है क्रोनिक वेलमोनोफाइटिस इन ऑफ इंटीरियर ऑफ ग्लैंड्स पेनिस एंड प्रिकर्सर स्किन। इट इज़ कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट, कैररो, फर्स्ट डिग्री लेशन एंड सोर ऑफ साइफिलिस। सीए ऑफ पेनिस वेरी लॉन्ग पर्पस रेयरली। और उसके बाद एक क्लिनिकल फीचर इनएबिलिटी करता है रिट्रैक्ट करने का परस्यूआ को। पिन होल मेटासिस है चिल्ड्रन में बेलोइंग करता है। परकोर्स को कैन बी सीन विद द डायग्नोसिस ऑफ फेमोसिस। कॉम्प्लिकेशन है सी ऑफ पेनिस है। प्यूरा फाइमोसिस है। ट्रीटमेंट है सर्कमसिशन इट अराउंड द ग्लैंड्स। प्यूरा इज रिमूव्ड। प्रोसीजर की बात करूँ तो परफ्यूज जो रिट्रैक्ट करता है 3 आर्टरी फोर्सेप्स से, 1 इन द मिडिल लाइन वेंट्रली एंड सेकेंड एंड 2 सेंटीमीटर आइदर साइड ऑफ द मिडिल लाइन डॉर्सली। परक्यूसा जो है स्प्लिट करता है मिडिल वेन डॉर्सली को विद इन 1.5 सेंटीमीटर ऑफ द कोरोना। जो लेयर होती है फ्लैप्स आर एक्साइज सुपरफिशियल अट्रैक्टिव ब्लैडर आर सिक्योर टू लाइगेटेड। इनर लेयर ट्राइमेट करती है 3 mm को फ्रॉम द कोरोना। जो 2 कट एजेस होती हैं अप्रॉक्सीमेटली विद फाइन इंटरप्टेड कैटगट सचर नियर फेरम। द मैट्रेस सचर इज गिवन टू ड्रेसिंग। एंटीबायोटिक्स आर गिवन फॉर 5 to 7 days। इनएबिलिटी टू प्लेस द बैक द रिट्रैक्टिव परपुरल स्किन ओवर द ग्लैंड्स इज ऑल्सो नोन एज पैराफायरोसिस। शिशिन अबुर्द की बात करूँ तो शिशिन पर प्राहमणि के बाद जो पीछे की ओर अंगुली और अबुर्द उत्पन्न होता है। इसमें से दुर्गंधित स्राव निकलता है। संभोग से यह रोग स्त्रियों में ही होता है। कभी कभी यह रोग घातक अबुर्द में परिवर्तित हो जाता है। अबुर्द के उत्पन्न जो चिकित्सा है अबुर्द के उत्पन्न होते ही अग्निकर्म द्वारा इसका स्थानिक छेदन कर देना चाहिए। सी ऑफ पेनिस है कि इसके निश्चित कारणों का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। उसके बाद की बात करूं कि शिशिन पर श्वेत शलाक्ता ल्यूकोमिया के निशान होने पर, अंकुर अबुर्द के जीर्ण होने से या शिशिन पर जीर्ण कंडू रहने से कैंसर हो सकता है। एवं शिशिन पर जीर्ण श्वकाल में रक्तता कट देने से यह अबुर्द नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करूँ तो लक्षण की क्या है कि फ्लैट इन फिल्ट्रेशन ट्यूमर ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द ल्यूकोप्लेगिया को और पेपिलस कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम
papilloma epidermis. CA originated from due to the smega. After 6 to 8 months, it forms tumor fungating mask, first involving iliac lymph nodes and after few months it is called fungated. Next की जो मैं बात करूँ तो वो क्या है, due to the painless disease patient not to be took on the treatment because of the patient does not aware of address abdominal thrombic disease, द मेटाफेसिस डेवलप. सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है आपका, और पार्टिफिशियल एम्पुटेशन ऑफ पेनिस है, टोटल एम्पुटेशन ऑफ पेनिस है. नेक्स्ट की मैं बात करूँ वृद्धि की, तो वृद्धि क्या होता है, वृद्धि शब्द का जो इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो आधुनिक मतों वृक्षण वृद्धि के लक्षण और चाइट्रिस है, हाइड्रोसील है, कंप्लीट है, एंगुलर हार्निया टेस्टिकुलर ट्यूमर के समान होता है. अगर वृद्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो चरक के अकॉर्डिंग बढ़ना होता है, और चरकनी वृद्धि रोग को वृद्धन कहा है. ठीक है. वात पित्त श्लेष में शोणित भेद मूत्र आंत्र निमित्त सप्त वृद्धिया, ये भेद बताए गए हैं. कौन कौन से हैं, वातज पित्तज कफज रक्तज मेदज वृद्धिज और आंत्रज. ठीक है. इसके बाद की मैं बात करूँ तो संप्राप्ति की बात करूँ तो त्रिदोषज प्रकोपक होते हैं. सुश्रुत अष्टांग भांगभट्ट से सुश्रुत आयुर्वेद विज्ञान से वातादि दोष प्रकोपित होकर फलकोश वाहिनी में जाकर उत्पन्न करके फलकोश के एक अथवा वाहिनी में जाकर विकार उत्पन्न करके फलकोश में एक से अथवा दो बाजुओं की वृद्धि करते हैं. इसे वृद्धि रोग कहते हैं. आचार्य चरक वात पित्त कफ से प्रकोप में आंत्र पश्चिम प्रदेश में स्थित अंतर्गत अंगराद छिद्र से अणुकोश में जाकर वहां से पुनः स्व स्थान में चला जाता है. इसे वृद्धन रोग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू वांगभट्ट, किसी कारणवश वृद्धि का अवरोध होने से प्रकोपित वायु शोक तथा शूल उत्पन्न करके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर तथा शूल स्थान में जाकर वक्षण प्रदेश में प्रवेश करके फलकों शवाहिनियों की धमनियों को पीड़ित कर फलकोश में वृद्धि रोग की उत्पत्ति करता है. नेक्स्ट है पूर्व रूपाणी बस्ती कोटिक मूषक मेडेशु वेदना मारुति से फलकोश शोफस्य. विशेष लक्षण की बात करूँ तो यहाँ पर है वातज वृद्धि लक्षण है. तत्र अग्निल परिपूर्ण बस्ती मिति वातातम कठोरम एवं वात वेदना से युक्त. नेक्स्ट है आपका पित्तज क्या है कि पक्व उदुम्बर संकाश ज्वर दहा ऊष्मा आशुकाशी एवं पक्व अवस्था में प्राप्त होता है. कफज की बात करूँ तो कठिन अल्प वेदना शीत कंडुमिति. रक्तज वृद्धि की बात करूँ तो कृष्ण स्फोट वृता पित्त वृद्धि लिंगम. नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो है मेदज वृद्धि लक्षण मृदु स्निग्ध कंडुयुक्त अल्प वेदना युक्त होती है. अल्फल प्रकाशा होती है. चरक अनुसार अंडकोश में मेद आने से जो वृद्धि होती है उसे मेदज वृद्धि कहते हैं. यह स्पर्श में स्निग्ध एवं कठिन होती है. नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें आ रहा है आपका वृद्धि वातज वृद्धि के लक्षण है कि आंत्रव्रत स्नेह मात्राव्रत स्नेहपास विरेचन एरंड तेल के साथ सिद्ध वातहर द्रव्य से सिद्ध काटकी निरुबस्ती मांस रस सेवन यष्टि मधु सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती वातहर स्नेहन उपनाह एवं प्रदेह का परिपक्व अवस्था में सीवनी का बचाव करते हुए भेदन कर्म एवं व्रण चिकित्सा करें. नेक्स्ट वन है आपका कि पित्तज वृद्धि चिकित्सा. अपक्व अवस्था में पित्तज ग्रंथि के समान चिकित्सा. पक्व अवस्था में भेदन व्रण शोधनार्थ मधु एवं घृत का प्रयोग, व्रण रोपणार्थ
व्रण रोपण तेल का प्रयोग। कफज वृद्धि का लक्षण क्या है कि चिकित्सा है कि उष्णवीर औषधि लेप, दारू, हरिद्रा, क्वाथ एवं गौमूत्र का सेवन, विमलापन के अलावा कफज ग्रंथि के समान चिकित्सा, पक्वावस्था में भेदन, अग्नि कर्म, व्रण का शोधन तथा रोपण। नेक्स्ट वन है रक्तज वृद्धि चिकित्सा क्या है, जलोका द्वारा रक्तमोक्षण, शकरायुक्त मधुर से विरेचन आम है तथा पाक्वावस्था में पित्तज ग्रंथि के समान चिकित्सा। मेदज वृद्धि के जो लक्षण है वो क्या है, स्वेदन, सुरासद तथा शिरोविरेचनीय गण की औषधि की गण की औषधियों के साथ लेप करें और शस्त्र कर्म यानी कि वृद्धि पत्र शस्त्र गौफणिका बंधन। उसके बाद है आपका मूत्रज वृद्धि का प्रमुख कारण प्रकोपित वात है। लक्षण है मूत्रवेग का धारण करने से मूत्र वृद्धि होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चलने के दौरान वृद्धि स्थान से किसी वृद्धि स्थान में किसी पेले थैले में पानी भरने के समान प्रतीत होता है। मूत्र कृष्ण भाग में वेदना तथा फल कोश में शोथ उत्पन्न होता है और इसीलिए इसे मूत्र वृद्धि कहते हैं। वृषण कोश का स्वेदन, वस्त्रपट्ट से आवेष्टन, सेवणी से पार्श्व एवं अधोभाग में बेहरी मुख शास्त्र से वेदन। इसके बाद नाड़ी यंत्र में द्रव पदार्थ का निहरण, स्थगित बंध का प्रयोग, व्रण का शोधन एवं रोपण। नोट है यदि कृष्ण वृषण कोश में आंत्र का प्रवेश होकर उसमें शोष उत्पन्न हो तो उपरोक्त चिकित्सा उपकर्म न करें, इसमें कोश प्राप्त आंत वृद्धि असाध्य होती है। What is hydrocele? It is a collection of serous fluid in the tunica vaginalis known as hydrocele. Commonly fluid contains water and inorganic salt and albumin, while in chronic cases cholesterol tyrosine crystals are formed. It has a specific gravity 1022 to 1025 and color of fluid with straw and amber colored. Classification of hydrocele: hydrocele, non-communicating hydrocele. Communicating hydrocele is a type of hydrocele which result due to the incomplete obligation of the process vaginalysis and communicated with the peritoneum. It is mostly found in neonates and children. Non-communicating hydrocele, it is a type of hydrocele which is not communicating with the peritoneal cavity. It is mostly found in people below the age of 50 years. It is very known as non-communicating hydrocele. According to anatomy, the congenital hydrocele, infantile hydrocele, funicular hydrocele, insected hydrocele और bilocular hydrocele. एटोलॉजी फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू etiological factor है congenital traumatic 2 degree inflammatory TB, epidermis, neoplastic CA और testis. कंटेंट है हाइड्रो हेमेटोसील, पायोसील, फ्लोरोसील, क्वाइचालोसील, फ्लूइड acid. 1 degree hydrocele contain clear fluid, so 2 degree hydrocele contain exudate fluid. 1 degree hydrocele is a common population, is mostly seen in young adults, middle age and old age. It is due to the following cases: defective absorption and defective lymphatic drainage, connection with the peritoneal cavity, excessive secretion of fluid. Clinical feature and not reducible fluid, soft to swelling, usually not associated with pain. Patient is psychologically disturbed, sometimes as a complication penis becomes curved. Patient is having difficulty in walking, swelling limited to the scrotum. Test है fluctuation test, plenum of fluctuation, trans elimination test positive. It may be negative in chronic condition. Next है congenital hydrocele is a pro-hydrocele. In this condition, tunica vaginalis sac communicate with the peritoneal cavity. It is seen in the neonates and mostly due to the TB. The scrotal swelling appears when the
Child is a erect position for a longitudinal, and it may be not reduced due to the inverted ink bottle effect. Hence, congenital hydrocele not reduced but able. But when children in supine position, particularly during sleeping, swelling regresses in size in the morning and increases as the duty passes. Incited hydrocele of cord. It is a insisted hydrocele of cord. It is a hydrocele of spermatic cord. It is a confined with the help of traction test. When test is pulled, the swelling comes down. Word known as traction test positive. It is a DD of angular hernia. Funicular hydrocele is a rare variety of congenital hydrocele. Bilocular hernia is a rare condition in which angulocervical swelling present with positive fluctuation and trans illumination test. In fertile hernia, the sac from the scrotum is patent to deep inguinal ring. It is commonly occur in young adults. Secondary hydrocele caused due to the excess secretion of the fluid, not by defective mechanism of the absorption. It is caused by the trauma, tuberculosis, tumor, malignancy, arthritis, and result in cystic swelling of the scrotum involving only the tunica vaginalis, known as secondary hydrocele. Example: pyocele, hematocele, and colocele. Complication: calcification, rupture, infection, hernia, and fertility. What is secondary, primary, and secondary hydrocele? Primary had effective absorption of fluid. Swelling is big. Testis is not permeable. Tampering. Fluid is clear. Unknown etiology. A trans illumination test positive. Progress slowly, mainly occur in old age. Secondary excessive production of fluid. Small swelling, palpable, not clear, not known etiology. For negative trans illumination test and progressive in rapid or generally young age. Next है आपका एस्पिरेशन ट्रीटमेंट है एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स करोगे लॉट्स एप्लीकेशन करोगे पार्शियल एक्सटेंशन ऑफ द सैक विद एक्सपर्शन करोगे सर्जिकल प्रोसीजर है हाइड्रोसिल का टेपिंग में क्या करोगे डायग्नोसिस इज नॉट कंफर्म्ड पेशेंट इज अनफिट फॉर द सर्जरी पेशेंट इज हैविंग द फिटनेस सर्टिफिकेट द डिसएडवांटेज रिकरेंस रेट इज 100% इन्फेक्शन हेमेटोमा इन्फेक्शन थेरेपी और स्क्लेरोथेरेपी मेथड है एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फॉलोड बाय इंजेक्शन of soluting agents such as the tetracycline 1 gram dissolved in 10 ml of distilled water and injected according to the aspiration fluid. That is, if 100 ml fluid aspiration, then the ingested 10 ml sclerotication agent sclerosis and the scrotal bandage for 24 to 72 hours is done. Advantage: less chances of recurrence. Disadvantages: cellulitis, allergy, CA of testes. लॉर्ड स्प्लिटेशन क्या इंडिकेशन है मीडियम टू बिग साइज ऑफ द हाइड्रोसिल एनेस्थीसिया जनरल और स्पाइनल प्रोसीजर है पेंटिंग ऑफ पार्ट फ्रॉम द लोअर एब्डोमेन टू द मिड थाई एंड वेट फॉर 2 minutes isolation of part assistant makes the swelling tends to make the vein prominent and place the testis posteriorly. Type of incision: vertically incision. It is 2 inches in size, parallel to the blood vessels on the affected side. Advantages: less hemorrhage and bleeding, less pain, less chance of infection. Disadvantages: the dorsus muscle may be cut and bound, healing may be delayed, transferred incision, abdominal dorsal muscle preserved, and rapid healing. Disadvantages: more bleeding and more chance of infection. Oblique incision advantage: quick healing and less bleeding. Make the vertical incision with knife cut dorsal muscle act spermatic fascia and internal spermatic fascia skin to tunica vaginalis. Ensure proper hepatitis. Then identify the sac by its bluish color. Introduce the trocar or cannula into the tunica vaginalis. While introducing it, the assistant will be keep the section ready and suck the fluid. Hold the margin of the sac with the Alice forceps and extend the incision as per requirement. Palpate the testis and observe it for the any surgical pathology. The sac is split behind the texas is fold from the center to the periphery with an atraumatic needle with 2 to 0 chronic catgut such as 6 to 8 stitches are taken according to the size of sac. But this test is into the
Put the testes into the normal position. All the layer expect the skins are sutured by the 2 to chronic catgut with a atomic needle with simple interrupted suture. Skin is closed by the line. Do not be use black silk as skin of the scrotum is black, so the chances of forgetting sutures are more during the removal of stitches. Clean the part with a spirit, but chasing and apply the cleaning. Put चेजिंग एंड अप्लाइंग द टी बैंडेज। नेक्स्ट है आंत वृद्धि। आंत वृद्धि क्या होता है? वृक्ष के से गिर जाने आदि विशेष परिश्रम के कारण अत्यंत बढ़ी हुई एवं प्रकोपित हुई वायु स्थल के तथा क्षुद्रांत के भाग को संकुचित करके नीचे की ओर जाकर वक्षर संधि का आश्रय करके संधि रूप स्थित होकर चिकित्सा नहीं करने से तथा कुछ समय बीतने पर फल्क कोश में जाकर मूषक अंड ग्रंथि को शोथ युक्त कर देता है। इस तरह ये शोथ आदु नाम युक्त तथा बस्ती के समान फल हुआ होता है। इस फल को इस शोथ में दबाने छोड़ने पर पुनः फलकोश में आकर फूलने सा होता है। इसे ही असाध्य आंतवृद्धि कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वार्नबर्ट, वात प्रकोपक आहार विहार शीतल जल में स्नान करने से मूत्रादि का धारण करने क्या क्षुद्रांत के भाग को संकुचित करके नीचे की ओर जाकर वक्षर संधि का आश्रय करके संधि रूप स्थिति स्थित होकर चिकित्सा नहीं करने से तथा कुछ समय बिताने स्थित होकर चिकित्सा नहीं करने से तथा कुछ समय बीतने पर फलकोश में जाकर मूषक को शोथयुक्त कर देता है। इस तरह ये शोथ अध्ययन युक्त तथा बस्ती के समान फल हुआ होता है। इस शोथ को दबाने छोड़ने पर पुनः फलकोश में आकर फूलने सा हो जाता है। नेक्स्ट है इसे ही असाध्य आंतवृद्धि कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वार्नबर्ट की बात करें तो वात प्रकोपक आहार विहार शीतल जल में स्नान करने से मूत्रादि वेग का धारण करने से अपने बल की अपेक्षा अधिक भार उठाने से अधिक व्यायाम करने से अति संक्रमण से वक्षर संधि में स्थित वायु आदि क्षुद्रांत में किसी भाग को संकुचित करके उसे विगुणता प्रदान कर अपने प्रकल स्थान से अशोभने की तरह ले जाता है, तो वह संधि के समान शोक उत्पन्न होता है। उसे ही आंतवृद्धि कहा जाता है। आंतवृद्धि का स्थान आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने अलग अलग माना है। सुश्रुत ने जो माना है वो है हमारा स्थूलांत्र और वाग्भट ने जो माना है वो है क्षुद्रांत। आंतवृद्धि की चिकित्सा, जो आंतवृद्धि फल कोश में ना पहुंची हो उसमें आदि के समान चिकित्सा करते हैं। रोगी को तीव्रत स्नेह से स्निग्ध करके स्वेदन करें तथा विधिपूर्वक विरेचन कराना चाहिए। एरन तेल को पिलाते हैं या 1 महीने तक दूध के साथ एरन तेल का सेवन कराते हैं। वायुनाशक प्रलेपों का प्रयोग करते हैं और अथवा विदर्दी अंग वृद्धि को पाककर सेवनी बचाते हुए चीरा लगाते हैं एवं व्रण के समान चिकित्सा करते हैं। वक्षण वृद्धि में मार्ग को भांति भांति अवरुद्ध करने के लिए अर्धचंद्राकार से चलाया जाना चाहिए। कोश प्राप्त वृद्धि को त्याग कर देना चाहिए। अंग विपर्य तथा बाएं भाग आंत वृद्धि में दाहिने पैर के अंगूठे की मध्यता की त्वचा को तथा दक्षिण भाग की आंत वृद्धि बाएं पैर की अंगूठे की मध्य त्वचा को काटकर जलाना चाहिए। आंत वृद्धि को रोकने के लिए शंख प्रदेश के ऊपर और कान के अंत में सेवनी को बचाते हुए निरुद्ध दिशा में वाम भाग में आंत वृद्धि के लिए दक्षिण भाग के शंख प्रदेश दिशा प्रदेश सिरावेद करना चाहिए। वाग्भट के अनुसार आंतवृद्धि के सुकुमार का ग्रथ का प्रयोग प्रशस्त है तथा गंधर्व हस्त तेल का प्रयोग करना चाहिए। अंश है आपका पादपुष्ट के साथ ही अनामिका का भी भेदन करके दहन करने का उपयोग किया गया है। योग रत्नाकार है। अंतरादि वृद्धि में रसायनादि तेल क्वाथ पिपलादि का लेप प्रयोग किया जाता है। अंत वृद्धि में नारायण तेल का पान मर्दन तथा अन्वासन बस्ती का प्रयोग करते हैं। फल त्रिकादि क्वाथ पुनर्नवादा तेल का उपयोग आंत वृद्धि में किया जाता है। नेक्स्ट है हार्निया, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय।